ہمارے بڑے درد ہیں چیئرمین صاحب، وزیر اعظم بننے کے بعد آپ ڈی خان کی عوام سے وعدہ کریں کہ آپ نے ڈی خان کی عوام کو ایک اسپیشل پیکج دینا ہے، کیونکہ ڈی خان کی عوام اس دفعہ آپ کو اسپیشل سیٹیں دے رہی ہے۔ لہذا میں آخر وچ نعرے مرسا وزیر اعظم اسلام آباد تے ونجے مول اسلام آباد بیٹھے اتنا نہیں بیٹھا، وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم ٹپے پہ ٹھپا، ٹپے پہ ٹھپا۔ نعرے بھٹو۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک بار پھر اپنا ڈی آئی خان میں موجود ہوں۔ میں یہاں کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو آپ نے جس طریقے سے، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے، اس کا ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں۔ میرا اور ڈی آئی خان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ 3 نسلوں سے چلتے آ رہا ہے۔ ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اسی ڈی آئی خان سے الیکشن لڑا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی، کنڈی صاحب مائک جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی آپ کے پاس آتی تھی، اور آج ایک بار پھر میں اپنا ڈیرہ اسماعیل خان کے سرزمین پہ کھڑا ہوں، اپنا بہادر اور وفادار بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ساتھیوں، میں الیکشنز کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ویسے تو کہا گیا کہ یہاں بہت ٹھنڈ ہے اور یہاں جو ہے برف باری ہے، اور اس لیے جو ہے کیمپین کرنا مشکل ہوگا، مگر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ سورج بھی باہر نکلا ہے، موسم بھی بہت اچھا ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا جو ٹھنڈ کی وجہ سے، جو برف باری کی وجہ سے الیکشن لڑنا نہیں چاہ رہے تھے؟ اب ان کے پاس بہانہ بھی نہیں رہا، اور 8 فروری پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ آج آپ کا جوش اور جذبہ دیکھ کے یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی تیروں کی بارش ڈیرہ اسماعیل خان میں تیروں کی بارش ہوگا۔ ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کیمپین کے لیے اس طریقے نہ نکلے۔ ہمارے ہاں خاص طور پہ پختونخوا میں دہشت گردی کا اور لا اینڈ آرڈر کا سوال نشان ہے۔ ایک بار پھر وہ دہشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے میدان میں ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے صفائی میدان میں ہے۔ میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر آپ دن رات میرے لیے محنت کر رہے ہو تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی دن رات آپ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ ہمارا جیالے پاکستان پیپلز پارٹی والے غیرت مند لوگ ہیں،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वफादार लोग हैं और सबसे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बहादुर लोग हैं, बहादुर लोग। हमारा सर कट सकता है मगर किसी के सामने हमारा सर झुकता तो नहीं है। आज मैं आपके पास आया हूं तो इसलिए कि एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। आज जो पाकिस्तान के अवाम जिन मुश्किल से गुजर रहे हैं, चाहे वो रायबंड वाले हो या कोई और हो, उनको एहसास ही नहीं है कि जो मुआशी बहरान, जिस मुआशी बहरान से आप गुजर रहे हो, ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा मुआशी बहरान है। जिस तेजी से गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे हमने पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं देखे हैं। जहां पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हो, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के तालिबे इल्म तकलीफ में हो, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती, पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकती। जहां एक तरफ ये मुआशी बहरान है तो जैसे मैंने कहा, दूसरी तरफ वही दहशतगर्द जिनको आपने शिकस्त दिलवाए थे, वही दहशतगर्द जिनका मुकाबला करते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके इस जमात के कारकुनों ने शहादत कबूल किए थे, वही दहशतगर्द जिनका मुकाबला करते हुए इस सूबे के पुलिस ने कुर्बानियां दिए थे, जो दहशतगर्द जिनके मुकाबले करते हुए हमारे सिपाहियों ने शहादत कबूल की, वही दहशतगर्द एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं। मुआशी बहरान, दहशतगर्दी का खतरा और साथ साथ आपने तो खुद देखा कि किस तरीके से मौसमी तब्दीली की वजह से जो कुदरती आफत, जो सैलाब आया था, वो मेरा डेरा इस्माइल खान से लेके जनूबी पंजाब से होते हुए सिंध और बलोचिस्तान के अवाम के साथ जो नुकसान हुआ, वो आज भी डेरा इस्माइल खान में वो नुकसान मौजूद है। जिनका छत छीना गया, उनके पास छत नहीं दिया गया, जहां इरिगेशन का निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया, वो आज भी टूटा फूटा है। अगर इन हालात में कोई और मुल्क हम होते तो तमाम सियासतदान ये एहसास करते, ये समझते कि इन हालात में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को वो मंशूर, वो नजरिया, वो पॉलिसी चाहिए जिनकी वजह से इनके तकलीफ में कमी आए, उनको रिलीफ दिया जाए। और अब तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें को उठा के देख लें, सिर्फ एक सियासी जमात है जो पाकिस्तान का गरीब अवाम की नुमाइंदगी करती है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो इस मुल्क की आम आदमी का नुमाइंदगी आज से नहीं 3 नस्लों से करती आ रही है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो गुर्बत, भूख और बेरोजगारी का मुकाबला आज से नहीं 3 नस्लों से करती आ रही है। बाकी तमाम सियासी जमातें अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। जब भी वो हुकूमत में आते हैं, वो अशराफिया को फायदा पहुंचाते हैं, वो अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं, अमीर को अमीर बनाते हैं और समझते हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर सकता है। कायदे अवाम ने हमें सिखाया कि अमीरों को नहीं,
अशराफिया को नहीं, अवाम को मदद करे, गरीब अवाम को मदद करे। अगर अवाम तरक्की करेगा, अगर आम आदमी तरक्की करेगा, अगर डेरा इस्माइल खान के मजदूरों और किसानों तरक्की करेगा, तो फिर पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है, वरना तरक्की नहीं कर सकती। मैंने इस इलेक्शन के लिए आपके मसाइल को सामने रखते हुए पाकिस्तान में 3 जो सबसे बड़ा मसाइल है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को सामने रखते हुए एक अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा में हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। ये जो 10 नुकाती एजेंडा है, ये कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया के मुताबिक तैयार किया गया है। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर के मुताबिक तैयार किया गया है। और ये वाहिद तरीका है कि हम इस मुआशी बुरहान से पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वैसे हमने इसको उर्दू में भी इसको छपाया है, पश्तो में भी इसको छपाया है, सराइकी में भी इसको छपाया है। तो आप जरूर इसका कॉपी लेके पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी के आपसे, पाकिस्तान के अवाम से क्या वादे हैं। एक जो मेरा पहला वादा है पाकिस्तान के अवाम से कि मैं अगर इस मुल्क का वजीर आजम बनूंगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम की जो आमदनी है, जो पाकिस्तान के अवाम की आमदनी है, इसमें ना सिर्फ मैं इजाफा करके दिखाऊंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। मेरा दूसरा वादा ये पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए कि पाकिस्तान के अवाम जो हकदार है, जो डिजर्विंग है, इनको इंशाअल्लाह ताला मैं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पहुंचाऊंगा, मुफ्त बिजली। तीसरा मेरा वादा ये कि हम पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, बेघर अवाम के लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा। और ये वैसे वादा नहीं जैसे वो दूसरा जमात वादा करते थे। ये मैं सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बना रहा हूं। सिंध में ये 20 लाख घर ना सिर्फ बन रहे हैं, पक्का घर इनको दिए जा रहे हैं, मगर उन घर में रहने वाले खवातीन को मैं मालिकाना हुकूक दिलवा रहा हूं। तो आप डेरा इस्माइल खान के सलाह मुतासरीन को बताएं कि मैं ना सिर्फ उनको पक्का घर बना के दूंगा, मगर इंशाअल्लाह ताला उनके मालिकाना हुकूक भी उनको मैं ना सिर्फ घर में दूंगा, मगर साथ साथ अब ये बात तमाम कच्ची आबादियों में पहुंचाए। पूरे पुख्तूनख्वा में जितने भी कच्ची आबादियां हैं उनको ये मेरे पैगाम पहुंचाए कि मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम कच्ची आबादियों को ना सिर्फ रेगुलराइज करूंगा, मगर वहां रहने वालों को भी मालिकाना हुकूक दिलवाऊंगा। बाकी जहां तक तालीमी इदारे की बात है, वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह वादा किया है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मगर डेरा इस्माइल खान में मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला कि यहां के खवातीन के लिए मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। जहां तक सेहत के शोबे में आपको मालूम होगा कि सिंध के हर इजला में, सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने किसी न किसी तरीके से मुफ्त इलाज का, मयारी इलाज का इदारा खड़ा कर दिया है। चाहे वो
दिल की इलाज हो, चाहे वो किडनी का इलाज हो, चाहे वो लिवर का इलाज हो, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, जो भी बीमारी हो 100% मुफ्त, 100% मुफ्त इलाज होता है। ऐसा नहीं जैसे यहाँ हेल्थ कार्ड के थ्रू आपको थोड़ा मदद दिया जाता है और बाकी बिल आपको खुद पूरा करना पड़ता है। सिंध में पूरा इलाज मुफ्त। आपका हॉस्पिटल में जो इलाज किया जाता है वो मुफ्त, जो आपको दवाई लेने पड़ते हैं वो मुफ्त, जो आपके टेस्ट होते हैं वो भी मुफ्त, जो आपका इलाज के बाद जिस तरीके से आपको रिकूपरेट करना पड़ता है वो भी हॉस्पिटल में 100% मुफ्त होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मैं सिंध का एक छोटा से तहसील में, खैरपुट की गंबट की तहसील में गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बना सकता हूं, जहां ये तमाम दिल से लेके किडनी और लिवर तक के तमाम इलाज, कैंसर से लेके हार्ट अटैक का इलाज 100% मुफ्त हो रहा है, तो कोई वजह नहीं है कि मेरा डेरा इस्माइल खान के अवाम के लिए यहाँ हम इंशाअल्लाह ताला, आप हमारा सूबाई हुकूमत बनाएं तो 6 महीनों के अंदर ही अंदर में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल यहाँ खड़ा कर दूं। और भी रहते हैं हमारे वादे, और भी है, 10 नुकाती एजेंडा था। हमने पिछली बार खवातीन के लिए जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया वो इनकलाबी प्रोग्राम था। आज तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतें को माली मदद मिल रही है इस प्रोग्राम की सूरत में। तो हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा में मेरा वादा है, ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला उन्हीं खवातीन के लिए हम बिला सूद कर्जा का बंदोबस्त करेंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सके, अपना खानदान का ख्याल रख सके और हमारा मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। मैं अपना डेरा इस्माइल खान के खवातीन को एक पैगाम देना चाह रहा हूं। मैं डेरा इस्माइल खान के अवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मेरी अपनी वालदा तो इस जिंदगी में नहीं रही, मगर मैं डेरा इस्माइल खान के खवातीन का वैसी खिदमत करना चाहता हूं जैसा एक बेटा अपना वालदा का खिदमत करता है, जैसा एक बेटा अपना माँ के खिदमत करता है। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट अपनी जगह, मगर इस बार में ना सिर्फ खवातीन को मगर इंशाअल्लाह ताला हमारे मजदूरों के लिए भी हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम मजदूरों से ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको आपका अपना मेहनत का सिला हम दिलवाएंगे। ये जो मजदूर कार्ड है, मेरे मजदूर भाई जो वहां उस घर पे काम कर रहे हैं, ये बात सुने कि हमने ये तय किया है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक जमाने में मजदूरों को हक दिया, मजदूरों को आवाज दी। आज हमने 2024 के मुताबिक मजदूरों को उनका हक दिलवाना है। उसके लिए मैंने ये मंसूबा शुरू किया है, सिंध में शुरू हुआ है। इरादा ये है कि मुल्क भर में हम बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आए और अब मजदूर जहां भी काम करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब वो अपने लिए काम करे, या वो किसी दुकान पे काम करे, या वो किसी के घर पे काम करे, या वो किसी का मीडिया चैनल पे काम करे, उनका हक होगा कि उनके पास ये बेनजीर मजदूर कार्ड दिया जाए। और इस बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो पेंशन का हक हो, सोशल सिक्योरिटी के हक हो, बच्चों की तालीम का हक हो, उनके अपना इलाज का, बुजुर्गों का इलाज के हक हो, जो तमाम फैसिलिटीज हैं, जो तमाम मजदूरों का जो हक है, इंशाअल्लाह ताला मैं वो हक उनको बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू खुद दिलवाऊंगा।
मजदूरों के साथ ये हमारा वादा, खवातीन के साथ वो हमारा वादा, किसानों से भी मेरा वादा है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के किसानों को भी हक दिलवाया था। बड़े बड़े जमींदारों से जमीन छीन के गरीब किसानों को जमीन का मालिक बनाया था। और आज मेरा आपसे वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला किसानों को बेनजीर किसान कार्ड दिलवा के डायरेक्टली उनके जेब में माली मदद पहुंचाएंगे। चाहे वो फर्टिलाइजर में, खाद में, डीएपी हमने मदद करना है तो किसी बड़े बड़े फर्टिलाइजर कंपनी को सब्सिडी देने के बजाय इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों को किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली सपोर्ट फराहम करेंगे। और इसी तरीके से निचली सतह पे इन्वेस्ट करके हमारा किसानों को सहूलत पहुंचा के हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। दो वादे रहते हैं, और एक कि कायदे अवाम का ख्वाब था कि इस मुल्क के कोई बच्चा भूखा ना सोए, इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सोए। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत सूबाई हुकूमत भी बनाएंगे, आप मेरा वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे तो मैं भूख मिटाओ मंसूबा इस मुल्क भर में शुरू कर दूंगा, यूनियन काउंसिल की सतह पे शुरू कर दूंगा। और ये इंश्योर करूंगा कि पाकिस्तान का कोई बच्चा, पाकिस्तान का कोई शहरी हमारे हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला भूखा नहीं सोएगा। आखिरी जो मेरा वादा है इस मुल्क के नौजवानों के साथ, आपने इस मुल्क के नौजवानों को ये बात समझाना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम की ख्याल रखती है, जो अवाम की काम करती है। इस बार इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट लेकर आए थे, वैसे हम बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आएंगे। और जो मेरे नौजवान भाई, जो मेरे नौजवान बहन बेरोजगार है, जो रोजगार की तलाश में है, जब तक वे रोजगार की तलाश में हैं उनको हुकूमत की तरफ से माली मदद मिलेगा ताकि वो इस मुश्किल वक्त में गुजारा कर सके, उनका कोई ख्याल रख सके, उनका साथ दे। ये आप पूछ रहे होंगे कि आप ये तमाम काम कैसे करेंगे। बाकी सियासी जमातें आते हैं तो वो कहते हैं कि पैसा ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसका फाइनेंसिंग का बंदोबस्त किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी 18वीं तरमीम के बाद 18 ऐसे या 17 ऐसे वजारतें हैं वफाक के जो कि डिवॉल्व होना चाहिए थे, 2015 में सूबा के हवाले करना चाहिए थे, मगर आज तक नहीं किए। ना मियां साहब ने किया, ना खान साहब ने किया, ना छोटे मियां ने किया। और ये वजारतें सालाना 300 अरब से ज्यादा रुपया जो है इन वजारतें पे खर्च होते हैं। इसके साथ साथ सालाना अशराफिया को सब्सिडी दिया जाता है, अमीरों को सब्सिडी दिया जाता है, बड़े बड़े बिजली घरों को, फर्टिलाइजर कंपनीज को, पता नहीं किस किस को सब्सिडी दिया जाता है। कितना सब्सिडी दिया जाता है? 1500 अरब सालाना आपका पैसा, पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा, हुकूमत का पैसा अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। तो मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो पहला काम मेरा यही होगा कि वो 18 वजारतें बंद करे और 300 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम की जेब में डालूं। दूसरा काम मेरा ये होगा, दूसरा ये कि जो 1500 अरब सालाना आपका पैसा अमीरों के जेब में जाता है,
अशराफिया के पास जाता है, इनसे छीन के मैं पाकिस्तान के गरीब आवाम को दूंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, बेनजीर मजदूर कार्ड की सूरत में, बेनजीर यूथ कार्ड, बेनजीर किसान कार्ड की सूरत में आपका पैसा इंशाअल्लाह ताला मैं गरीब आदमी पे खर्च करूंगा, आम आदमी पे खर्च करूंगा। फिर आप देख ले कि कैसे पाकिस्तान की मईशत तरक्की करना शुरू कर देता है। फिर आप देख ले कि कैसे पाकिस्तान के अवाम अपने पांव पे खड़े होके इस मुल्क का तरक्की का खुद बंदोबस्त कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका सिर्फ इतना दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जिस अंदाज में आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया, वैसे आप मेरे साथ दे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं इस डेरा इस्माइल खान का किस्मत बदलूंगा, मैं इस पख्तूनख्वा का किस्मत बदलूंगा, मैं पाकिस्तान का किस्मत बदलूंगा। आप अगर वैसे ही मेरे साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आपने पाकिस्तान के अवाम को समझाना है कि 8 फरवरी एक बहुत अहम दिन है। 8 फरवरी पे फैसला होगा कि पाकिस्तान के आने वाले 5 साल कैसे गुजरेंगे। अगर आप वही पुराना सियासत चाहते हैं, अगर आप वही नफरत और तकसीम की सियासत जो खान साहब से लेके मियां साहब कर रहा है, वही सियासत चाहते हो, तो फिर आप अपना वोट या किसी इंडिपेंडेंट पे जाया करें, या किसी किताब पे जाया करें, या किसी बिल्ली पे जाया करें। मगर अगर आपने पाकिस्तान की आवाम की तरक्की का बंदोबस्त करना है, अगर आपने गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करना है, अगर आपने इस अवामी मुआशी मुआहिदा को हकीकत में तब्दील करना है, तो एक ही निशान है जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का निशान है, जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का निशान है, जो मेरा निशान है। और ये तीर, इस तीर के साथ आप डेरा इस्माइल खान के अवाम को समझाए कि अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है, कोई और नहीं रहा इस मुकाबला में। आप चाहे या ना चाहे, अब खान साहब जो है वो इस इलेक्शन से तो आउट है। अगर आपने और सुना है कि मौलाना तो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आया है, तो वो भी आउट ही होगा। रहा शेर और तीर का मुकाबला। अब आप बाशूर लोग हैं, आप जानते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे होते हैं। ये तो पहला इलेक्शन नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे होते हैं, और कोशिश नून लीग का यही है कि वो एक इंप्रेशन दे दे कि वो आज से 4थी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मगर अगर कोई इस शेर का रास्ता रोक सकते हैं, तो इस सूबे के अवाम, इस मुल्क के अवाम उनका रास्ता रोक सकते हैं। आपने देखा कि मियां साहब इस मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमारे पश्तून भाइयों के लिए, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मेरा पख्तूनख्वा के लिए। हम ना सिर्फ इसका मज़ाहमत करते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को सोच समझ के तीर पे थप्पा लगाए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए शेर का शिकार का बंदोबस्त करता हूं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को मेरे डेरा इस्माइल खान के अवाम तीरों के बारिश, इतना तीरों के बारिश के शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं जानता हूं कि आपस का लड़ाइयां भी होते हैं, मैं जानता हूं कि टांगे भी खींचे जाते हैं,
میں جانتا ہوں کہ آپس میں لوگ لڑتے ہیں، مگر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ایم پی اے کون ہے، ایم این اے کون ہے. وہ تو اگر آ کے مجھے ووٹ ڈالیں گے، میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا تو سمجھو آپ خود وزیر اعظم بن جائیں گے. تو اگر آپ میرے امیدواروں کے ٹانگ کھینچیں گے تو سمجھو آپ میرا ٹانگ کھینچ رہے ہو. ایسے کام جو ہے، میں جانتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام وفادار ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام غیرت مند ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام جذباتی بھی ہے. آپ کا جذبات کا بھی، آپ کے جذبات کے بھی ہم گنجائش چھوڑتے ہیں، مگر 8 فروری ایک بہت اہم دن ہے. 8 فروری کو آپ اپنا ذاتی ایشوز کے بجائے ملک کے بارے میں سوچیں، قوم کے بارے میں سوچیں. کیا آپ چاہتے ہو کہ وہی شخص چوتھی بار وزیر اعظم بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ یہ شیر کا سازش کامیاب ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے نفرت اور تقسیم کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ سیاسی انتقام کی سیاست چلتے رہے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیاسی کارکن جیل میں جاتے رہے؟ ایک ہی جماعت ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی 3 نسلوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں. قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انتقام نہیں، اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں کہی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. صدر زرداری کا حکومت بنا تو صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا گلا کاٹا، جس نے میرا زبان کاٹا، اب میں ان کا گلا اور ان کا زبان کاٹوں گا. مگر صدر زرداری نے بھی کہا کہ پاکستان کھپے. میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جب تیر کی جیت ہوگی، 8 فروری کو جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی، تو میں نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دوں گا. آپ نے 8 فروری کو تیر پہ تھپا لگانا ہے. میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ چنو نئی سوچ کو، چنو پاکستان کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو. یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں میرا تیر کے امیدوار فیصل کریم کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے. یہ دونوں میرے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں. پھر صوبائی اسمبلی میں احمد کنڈی صاحب ہے، میاں خیل صاحب ہے، عزیز اللہ علی زئی صاحب ہے، احسان میاں خیل صاحب ہے اور اکبر صاحب ہے. آپ نے تیر کو دیکھنا ہے، آپ نے صرف تیر کو دیکھنا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی. 8 فروری کو جیت تیر کی ہوگی، جیت ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کی ہوگی. جیے بھٹو.